محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ کی ترقی و ٹی آر ایس کی کارکردگی سے مرکزی بی جے پی قائدین خوفزدہ، بغلاہٹ میں دے رہے بیانات۔ متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا۔ اپنے وطن عزیز ہندوستان کی خواتین و بچھڑے طبقے کے عوام کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والی عظیم خاتون فاطمہ شیخ کی 191ویں یوم پیدائش کے موقع پر دی گئی گوگل کی جانب سے خراج عقیدت۔ بیرکل پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا کورونا، کئی پولیس ملازمین کورونا وبا کا ہوئے شکار۔ متحدہ ضلع میں جوش و خروش کے ساتھ ریتو بندھو سمرالو کا مختلف مقامات و دیہی علاقوں میں انعقاد، ریاستی وزیر اعلیٰ KCR سے کیا اظہار تشکر۔ مہاراشٹر میں پیر سے رات کا کرفیو، 15 فروری تک اسکول بند، مسجد کئی پابندیاں۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اپنے وطن عزیز ہندوستان کی خواتین و بچھڑے طبقے کے عوام کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والی عظیم خاتون فاطمہ شیخ کی 191ویں یوم پیدائش کے موقع پر دی گئی گوگل کی جانب سے خراج عقیدت۔ فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی ماہر تعلیم تھی، جن کا شمار ملک کی پہلی مسلم خاتون ماہر تعلیم میں ہوتا ہے۔ سماجی جہدکار جیوتیبا پھلے اور ساوتری بائی پھلے کی ساتھی تھی۔ فاطمہ شیخ میاں عثمان شیخ کی بہن تھی، جن کے گھر جیوتیبا پھلے اور ساوتری بائی پھلے نے رہائش اختیار کی۔ فاطمہ شیخ نے ان دونوں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے لیے اسکول شروع کیا تھا۔ آج فاطمہ شیخ کی 191ویں یوم پیدائش ہے۔ گوگل نے آج فاطمہ شیخ کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اپنے ڈوڈل پر فاطمہ شیخ کی تصویر اپلوڈ کی ہے۔ فاطمہ شیخ 9 جنوری 1831 کو مہاراشٹر کے پونے میں پیدا ہوئی۔ فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی معلمہ و مریبہ اور مشہور سماجی مصلح جیوتی راؤ پھلے اور ساوتری بائی پھلے کی ساتھی تھی۔ فاطمہ شیخ میاں عمر شیخ ہمشرہ تھی، جن کے گھر میں جیوتیبا اور ساوتری نے قیام کیا تھا۔ وہ جدید ہندوستان کی اولین مسلمان معلمات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے پہلے کے اسکول میں دلت بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ جیوتیبا اور ساوتری نے فاطمہ کے ساتھ مل کر نچلے طبقے میں تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ فاطمہ شیخ اور ساوتری بائی نے عورتوں، نچلے اور دبے ہوئے طبقے کو لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی تو ان کو مقامی افراد کی جانب سے دھمکیاں ملی۔ ان کے خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آیا وہ لوگوں کو پڑھانا چھوڑ دے یا پھر گھر بدر ہو جائے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ان کے صدمے میں نہ تو ان کا خاندان اور نہ ہی قبیلہ ان کی مدد کو آگے آیا۔ دونوں نے اپنے لیے جائے پناہ تلاش کی اور دبے کچلے لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جائے پناہ تلاش کرتے ہوئے ان کو ایک مسلم شخص عثمان شیخ کا پتہ ملا، جو پونے کے گجن پیٹ علاقے میں رہتے تھے۔ عثمان شیخ پھولے بہنوں کو اپنا گھر دینے پر راضی ہو گئے اور احاطے میں ایک اسکول بھی کھول دیا۔ 1847 میں عثمان شیخ اور ان کی بہن فاطمہ شیخ کے گھر میں ایک اسکول کھولا گیا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ اعلیٰ طبقے کے تقریباً تمام افراد ان دونوں کی اس حرکت سے ناراض تھے اور ان لوگوں نے سماجی طور پر پریشان کر کے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن ایسے وقت میں فاطمہ شیخ آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور ساوتری بائی کی ہر ممکن مدد کی۔ فاطمہ شیخ نے بھی ساوتری کے ساتھ اسی اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ ان دونوں کو سگنا بائی کا ساتھ ملا اور بعد میں چل کر تعلیمی میدان کی ایک اور رہنما ثابت۔ فاطمہ شیخ کے بھائی عثمان شیخ بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے۔ اس دور کے دستاویزوں کے مطابق عثمان شیخ نے ہی فاطمہ شیخ کو تعلیمی میدان میں کام کرنے کا مشورہ دیا تھا، جب فاطمہ اور ساوتری نے جیوتیبا کے اسکول میں جانا شروع کیا۔
महाराष्ट्र में पीर से रात का कर्फ्यू, 15 फरवरी तक स्कूल बंद, मस्जिद कई पाबंदियां। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर रियासत में से रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के पेश नजर नए रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस 15 फरवरी तक मुकम्मल बंद रहेंगे। अलबत्ता 10वीं और 12वीं जमात के लिए कोचिंग का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम दीगर जमातों के लिए कोचिंग को बंद रखने की हिदायत दी गई है। नई सरकारी हिदायत के मुताबिक खानगी दफातर में गुंजाइश से आधे लोग ही जा सकेंगे। रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इसी तरह शादियों और आखिरी रस्मात में शिरकत करने वालों की तादाद पर भी पाबंदियां आयद कर दी। हुकूमत ने ऐलान किया है कि शादियों में सिर्फ 50 और आखिरी रस्मात के लिए 20 लोगों को इजाजत दी जाएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा मुनफरिद स्कीमात से बेपनाह अवामी मकबूलियत हासिल करने की बिना पर आसाम के सीएम जहनी दिवालियापन में मुब्तला होने का MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा की जानिब से आयद करदा इल्जामात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में फ्राहम करदा स्कीमात से अवामी मकबूलियत हासिल होने की बिना पर आसाम के CM बौखलाहट का शिकार होकर बनावटी बातों के जरिए हुकूमत की शुबा को मुतासर करने की नाकाम कोशिश करते हुए जहनी दिवालियापन में मुब्तला होने का इजहार किया और बताया कि 2018 में मुनक़िदा तेलंगाना इंतखाबात में बीजेपी डिपॉजिट से महरूम होने की बात याद दिलवाते हुए कहा कि बीजेपी के 2014 में बरसर इख्तिदार पर आने के बाद हर साल 2 करोड़ मुलाजिमत देने का वादा कर फरामोश करते हुए बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह में 8% इजाफा होने की बात बताई। और इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अब तक 30,000 मुलाजिमतें फराहम करने के अलावा प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख मुलाजिमतों की फ्राहमी अमल मिलाकर रियासत तेलंगाना मुल्क की सतह पर अव्वलिन मुकाम को हासिल करने का इजहार किया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इंतबाह, बच्चों पर नजर रखने वालिदैन से पुलिस कमिश्नर नागराजू की ख्वाहिश। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद मिस्टर KR नागराजू ने सहाफती इलामी में कहा कि अवाम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने से परहेज करें। इन्होंने कहा कि बाज़ गैर समाजी अनासिर गैर कानूनी तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करते हुए समाज के मुख्तलिफ तबकात के जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिरका वाराना हमआहंगी को नुकसान पहुँचाने और अमन व अमान को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने गैर जरूरी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करने और इसे शेयर करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ IPC 153, 395 और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 ta 5 साल जेल की सजा दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने सरपरस्तों से कहा कि वो अपने बच्चों के सेलफोन की नकल व हरकत पर नजर रखे। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात से किसी को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर गलत पैगामात पोस्ट ना करें और ना ही इन्हें दूसरों को शेयर या फॉरवर्ड ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रियासती और जिले सतह पर इस तरह के जराइम की रोकथाम और तफ्तीश के लिए एक खुसूसी IT डिपार्टमेंट कायम किया गया है। महकमे IT जराइम पर 24 घंटे कंट्रोल करने और पोस्टों पर तवज्जो मरकूज करता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सेलफोन इन्हें वाकई इसकी जरूरत है तभी इन्हें फ्राहम करें। MA लतीफ के हैदराबाद में मुनाकिद कांग्रेस की मुशावरती इजलास में शिरकत व खिताब। हैदराबाद में ज़िर सदारत मोहम्मद आमिर कुल हिंद पोलिंग बूथ कांग्रेस तेलंगाना रियासती सदर की क़यादत में एक मशावरती इजलास मुनाकिद किया गया, जिसका मकसद 2024 में राहुल जी को वज़ीर आज़म बनाना। इजलास से खिताब करते हुए कुल हिंद पोलिंग बूथ कांग्रेस रियासती तर्जुमान MA लतीफ ने कहा कि आज से मिशन तेलंगाना 2023 की जंग का आगाज हो चुका है। इस जंग का इख्तिताम 2024 के इख्तिताम में भारत में कांग्रेस हुकूमत के साथ ही होगा और साथ ही माजी की तारीख को ताज़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के साबिका कायदीन जिस तरह अवामी खिदमात अंजाम देते हुए इख्तिदार हासिल किया था, इस तरह का कोई अंजाम देने की जरूरत है और साथ ही मुस्तकबिल में तेलंगाना रियासत में कांग्रेस के परचम लहराए जाने की भी उम्मीदें जाहिर की। विलेजेस जाकर मेन क्या है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर कई लीडर्स, मैं कुछ कड़वा कर बोला तो उसके लिए बहुत चाहता हूँ। फोटोज मार लेना, सेल्फीज मार लेना, जाके जो है गाड़ियों में ऐसे शो करना, ये जो है जो कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री है
जो संस्कृति है कांग्रेस पार्टी की, हमारे जो वरिष्ठ नेता है, जो ऊपर अधिकारी है, ये लोग भूखे रह के टिफिन बन लेके करके खेतों में जाके जरूरत से फारिग हुए रोडों पे आके ग्राउंड लेवल का काम करें, तभी जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। और सत्ता में लाने के लिए हमको जो है विलेज जो आज हमारे राज्य के अंदर DRS गवर्नमेंट है, उसकी नाकामियों को हम एक घर घर को जाके जो है समझाना, और जो है हम एक एक मंडल में चाहे हर विलेज में जाके ऑल इंडिया पोलिंग बूथ जो है हमारी बूथ कमेटी है, और यही है लीडर छोड़ो, आज MP रहते, कल MLA रहते, मगर ये जो मेन है ये पोलिंग बूथ कमेटी को मजबूत करना है। इसी के जरिए से जो है सो संसद के अंदर विधायक बने जाते, इसके बगैर जो है विधायक नहीं बनाए जाते। तो मैं तमाम हमारे बालगोंडा मंडल के मुकाम पर PACS के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने रैयत बंधु तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। बालगोंडा मंडल के मुकाम पर MPP लावण्या लिंगागौड़ ने कहा कि रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर निगरानी में गुज़िश्ता 7 यौम से रैयत बंधु तकरीब को मुनक़िद करते हुए मुकामी ख़वातीन व तलबा के लिए रंगोली के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाए जाने की बात बताते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रैयत बंधु स्कीम के तहत 8 मरहलों के तौर पर किसानों के बैंक खातों में 50,000 करोड़ रुपए रास्त तौर पर जमा करने की बिना पर मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम किसानों की जानिब से रैयत बंधु तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद किसानों को रैयत बीमा, रैयत बंधु और 24 घंटे मुफ्त बरखे जैसी सहूलतें पहुँचाने का किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेम्पल्ली पेद्दा बालराजेश्वर, डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड़, C दमन्ना, S नरसैया, A देवन्ना, मंडल गंगाराम, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, सेक्रेटरी मोहित पाशा, मेमरान गोपाल, महेंद्र, गंगा बापू व दीगर ने शिरकत की। मोरताज सोसाइटी चेयरमैन बदाम अशोक रेड्डी के जेर निगरानी में नुमाइंदों ने रैयत बंधु तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए CM KCR और रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी MLC के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया। बालकोंडा मंडल के मोरतार सोसाइटी चेयरमैन बदम कलम अशोक रेड्डी के जेर निगरानी में वाइस चेयरमैन D नवीन, DCCB डायरेक्टर M बुमन्ना और जिले रैयतों समन्वय समिति के मेंबरान ने रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक रैयत बंधु तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए बैल भंडी व ट्रैक्टर रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए CM KCR और रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी के फ्लेक्सी का क़याम अमल में लाने के साथ साथ CM KCR और रियासती वजीर परेशान रेड्डी MLC के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया और बातज़ा अवामी नुमाइंदों ने केक कट करते हुए एक दूसरे को मिठाई की तकसीम अमल में लाकर रैयत बंधु तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, सोसाइटी, मजलिस बल्दी की मेंबरान, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच व अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़राई मार्केट कमेटी में रैयत बंधु तकारीब का शानदार इनेकाद। जिले कामारेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़राई मार्केट कमेटी में MPP कविता विजय, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी ने रैयत बंधु तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत हुकूमत किसानों की फलाह बहबूदी के लिए मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए कोशा है और किसानों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के ज़िमन में हिंदुस्तान में मुनफरिद स्कीमात का आगाज करते हुए किसानों को न सिर्फ सहूलतें बल्कि इन्हें रैयत बंधु स्कीम सिर्फ और सिर्फ किसानों की फलाह बहबूद के लिए रूबे अमल में लाई गई, जबकि इस स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी की तमाम सहूलतों को मुहैया करते हुए हिंदुस्तान भर में किसानों को सहूलतें फराहम करने वाली पहली रियासत में तब्दील होने का इजहार किया। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कमरपल्ली मंडल रैतू कोऑर्डिनेटर की जेर निगरानी में रैतू बंधु तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल रैतू कोऑर्डिनेटर की जेर निगरानी में रैतू बंधु तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करते हुए डॉक्टर ट्रैक्टर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों को रैतू बंधु रैतू बीमा 24 घंटे मुफ्त बरक़ी कालेश्रम पंपिंग के तहत काश्त के लिए ज़ख़ायरात के इजराई अमल में लाने की बात बताते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबी अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रैतू बंधु कोऑर्डिनेटर TRS पार्टी मंडल सदर MPP ZPTC AMC चेयरमैन मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच MPTC मुकामी किसान TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। మరి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు। మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉచిత రైతులకు ఉచిత కరెంటు, మరి రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా సాగునీరు, తాగునీరు, రైతు బంధు, రైతు బీమా మరి సకాలంలో ఇస్తూ మరి ఎరువులు పథకం కింద ఈరోజు రైతులు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు। ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాకపూర్వం రైతుకు పెట్టుబడి కోసం సావుకారు దగ్గర అప్పు తీసుకునేవాడు। అదే సావుకారికి ఇష్టం వచ్చిన రేటుకు అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వస్తుండే। ఎంతో మంది పుస్తల తాడు కూడా పెట్టుకొని పెట్టుబడి కోసం అమ్ముకున్న సేవ చేసుకున్నటువంటి TRS ప్రభుత్వానికి ఎదురులేని శక్తిగా ఎదుగుతున్నదని చెప్పేసి ప్రతిపక్షాలు ఓర్వలేక పిచ్చి పిచ్చి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు తప్ప ఇవాళ ఇంత మంచి ప్రభుత్వం మనకు దొరకడం నిజంగా మన అదృష్టం। बासर मंडल किसानों की जानिब से रैतू बंधु तकरीब का एहतिमाम। वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाकर किया खुशी का इजहार। बैंसा शहर की करीबी मौजे बासर में आज रैतू बंधु तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली का एहतिमाम किया गया। बातुज़ा वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाकर फूल माला चढ़ाया गया। इस तकरीब में खिताब करते हुए रुकन असम्बली मधुल G विठल ने कहा कि TRS हुकूमत और वज़ीर आला KCR किसानों को हर माह पर राहत पहुँचाने के लिए कोशिश है, जिसकी जिंदा मिसाल हर माह किसानों के खाते में रकम के जमा होने से साबित होता है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा दीगर स्कीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि TRS का मकसद सुनहरे तेलंगाना की ताबीर को यकीनी बनाना है। इस मौके पर TRS कारकुनान व किसानों की कसीर तादाद मौजूद थे। बेंडोरा मंडल के मुकाम पर रैतू मंडल पार्टी कायदीन की जेर निगरानी में रैतू बंधु तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करते हुए मुकामी महिला किसानों ने CM KCR और रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। मेंडोरा मंडल के मुकाम पर किसान व मंडल पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रैतू बंधु तकरीब के तहत शुरू करदा ट्रैक्टर रैली को चकिरियाल, दोदीगाम, पोचमपाड़, सोनपेट, नेहरू नगर से गुजरते हुए बुसापुर तक रैली इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा मुकामी महिला किसानों ने CM KCR व रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी की फ्लेक्सी को दूध से नहलाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत में तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए रियासत में मुक़ीम तमाम किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए मुनफरिद स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, मंडल पार्टी से वाबस्ता कायदीन, मुकामी महिला किसान व दीगर ने शिरकत की। हज के लिए महज 53,000 दरख्वास्तें वसूल। सऊदीया से मुआहिदा अभी नहीं हुआ। कोरोना के गैर यकीनी हालात के सबब सऊदी अरब ने हज 2022 के लिए कोई क़तई फैसला नहीं किया है। मुख्तार नकवी मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि 1 नवंबर से दरख्वास्तों की वसूलियाबी का सिलसिला जारी है और अब तक 53,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मिली है, जबकि फिलहाल हज के ताल्लुक से सऊदी अरब ने कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया है और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मुआहिदा भी नहीं हुआ है। वजीर मौसूफ ने आज हज 2022 के मुतालिक एक तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मतला किया। मुख्तार नकवी ने मज़ीद कहा कि आफत के खात्मे, अवाम की सेहत सलामती के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत, एहतियात और दुआ ही सफर हज को मुमकिन बनाएगा। हज को लोगों की सेहत, सलामती और हिफाजत को तरजीह देकर सहूलतों और बेहतरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश है। इन्होंने एक बार फिर कहा कि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है। आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरख्वास्तें दे रहे हैं और वो मोबाइल का भी इस्तेमाल करें। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी रखी गई है। फिलहाल 50,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है और एक ख़वातीन आज़मीन हज भी शामिल है जो कि
بغیر محرم سے جانا چاہتی ہے۔ وزیر حج اور اقلیتی امور نے کہا کہ حج سعودی حکومت کے ذریعے کورونا پروٹوکول، ہدایت اور ضوابط و قواعد کے تحت ہوگا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہندوستان سے حج سفر کے انتظامات میں اہم اصلاحات اور سہولیات کی فراہمی سے حج کے عمل کو بے حد آسان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں حج سبسڈی ختم کرنے، بغیر محرم کے حج کی پابندی ہٹائے جانے کے ساتھ ساتھ حج کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنے جیسی اصلاحات سے ایز آف ڈوئنگ حج کو قوت حاصل ہوئی ہے۔ مختار نقوی نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کا پورٹل، حج گروپ آرگنائزرز کا پورٹل، ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ، ای ویزا، صحت کے ضمن میں سہولیات، مکہ مدینے میں قیام کے لیے بلڈنگ، ٹرانسپورٹیشن کی معلومات ہندوستان میں ہی فراہم کرنے والی ای لگیج ٹریکنگ کی سہولیات، ای ویزا، جدید سہولیات سے لیس حج موبائل ایپ وغیرہ سے ہندوستانی عازمین حج کی سہولیات، تحفظ، آسانیوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نقوی نے کہا کہ ہندوستان میں حج 2022 کا پورا عمل آن لائن ڈیجیٹل ہوگا۔ انڈونیشیا کے بعد زیادہ تر عازمین حج ہندوستان سے روانہ ہوتے ہیں۔ عازمین حج کے انتخاب کا عمل کورونا ویکسین کی دونوں خوراک لیے جانے اور ہندوستان اور حکومت سعودی عرب کے ذریعے حج 2022 کے اوقات کے تعین کیے جانے والے کورونا پروٹوکول، ہدایت اور رہنما اصولوں کو دھیان میں رکھ کر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ 10 مقامات سے پروازیں روانہ ہوں گی۔ مختار نقوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سعودی عرب حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حج 2022 کے لیے شروعات کی گئی ہے۔ بیرکور پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا کورونا، کئی پولیس ملازمین کورونا وبا کا بنے شکار۔ ضلع کاماریڈی بیرکور پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے 15 پولیس ملازمین کورونا کا ٹیسٹ کرنے کی بنا پر SI رامو کے ساتھ ان کی دختر اور ایک کانسٹیبل کے علاوہ دونوں ہوم گارڈ کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہونے پر محکمہ صحت کے عہدیدار نے مقامی عوام کو ڈر و خوف میں مبتلا نہ ہونے کے لیے کہتے ہوئے قبل از وقت احتیاطی اقدامات پر عمل آوری کرتے ہوئے یقینی طور پر ماسک کا استعمال کرنے کی مقامی عوام کو ہدایت دی۔ کووڈ کے باعث ضلع سے ملحقہ عوام میں تشویش۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر دستک دے چکی ہے۔ ضلع نظام آباد میں بھی کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع نظام آباد مہاراشٹر کی سرحد سے ملحقہ ہونے پر بودھن جکل میں واقع کوٹگیر، رینجل، نوی پیٹ، کاماریڈی ضلع کے جکل سے ملحقہ مدنور، بچکندا، دیگلور، بلولی، دھرماباد تعلقہ جات بودھن ڈویژن سے 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ گزشتہ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران بے شمار کورونا کے کیسز سے متاثرہ مریض نظام آباد کے مختلف دواخانہ جات سے رجوع ہوتے ہوئے اپنا علاج کروایا تھا۔ کورونا اور اومیکرون کی تیسری لہر کے آغاز سے سرحدی علاقے سے تعلق رکھنے والی عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس دوران محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی جانب سے سرحدی علاقوں میں کورونا کی ٹیسٹنگ کے لیے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ نظام آباد میں تجارتی مقاصد کے لیے بے شمار افراد یہاں پر خرید و فروخت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں بھی کورونا کے کیسز میں آئے دن اضافہ ہونے سے سرحدی علاقوں سے ملحقہ موضوعات جات میں مہاراشٹر سے یہاں پہنچنے والی عوام کو لے کر مختلف موضوعات جات میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ ضرورت اس بات کی کہ عوام بھی اپنے طور پر اس مرض سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ ہجوم والے علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کی فیس ادا کرنے کی تاریخ کا اعلان۔ تلنگانہ SSC بورڈ نے اپریل یا مئی میں منعقد ہونے والے 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کی فیس کی ادائیگی کی تاریخوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ امتحانی فیس اس ماہ کی 29 تاریخ تک بغیر کسی جرمانے کے ادا کی جا سکتی ہے۔ 50 روپے کی لیٹ فیس 10 فروری تک ادا کی جا سکتی ہے۔ امتحانی فیس 21 فروری تک 200 روپے لیٹ فیس کے ساتھ اور 500 روپے لیٹ فیس کے ساتھ 3 مارچ تک بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سنکرانتی تہوار کی تعطیلات میں عوام پولیس کے احکامات پر عمل کریں، نظام آباد پولیس کمشنر KR ناگراجو۔ نظام آباد پولیس کمشنر مسٹر KR ناگراجو نے آج سنکرانتی تہوار کی تعطیلات میں اپنے مکانوں کو مقفل کرتے ہوئے دوسرے گاؤں یا شہر کو جانے والوں کے لیے رہنمانہ خطوط جاری کیے۔ انہوں نے عوام الناس سے مندرجہ ذیل ہدایتوں پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ صبح کے وقت ردی کاغذات، خالی تھیلے، ہر ایک مال کی اشیاء بیچنے والوں پر نظر رکھے۔ رات کے اوقات میں مشتبہ حالات میں گھومنے والوں پر نظر رکھے۔ اطراف و اکناف کی کالونیوں میں مکانوں کو مقفل کر کے صبح کے اوقات میں جاتے ہیں۔ ان مکانوں میں چوری کی وارداتیں پیش
जाती है। कीमती अशिया को पड़ोसियों के हवाले करते हुए भरोसा न करें। आसपास में रहने वालों को घर पर नजर रखने के लिए कहें। जहां तक मुमकिन हो सके जल्द से जल्द अपना सफर मुकम्मल करने का मंसूबा बनाएं। घर के मर्द अफराद खानदान बाहर जाने पर, मकान में मौजूद खवातीन व ज़ईफ हज़रात अजनबियों के आने पर कोई मालूमात ना दे। वक्तन फवक्तन पड़ोसियों से घर की मालूमात जानना चाहिए। सफर करते वक्त कीमती अशिया को ना पहनना ही बेहतर है। इस अशिया को बैंक लॉकर में रखना ही बेहतर है। कॉलोनियों में गश्ती दस्ते तश्कील दिए जाए। मकान को मुकफ्फल करके गाँव को जाने से कबल अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दे। महकमे पुलिस को चोरी के मुश्तबा अफराद की मालूमात फराहम करके चोरी की रोकथाम में ताउन करे। खास तौर पर तुम्हारे घर के इतराफ रहने वालों के लैंड फोन नंबर या सेल फोन नंबर अपने पास रखे। जो लोग वक्तन फवक्तन मालूमात फराहम करना चाहते हैं वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें या डायल 100 से इस्तिफादा हासिल करें। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों देवड़ा गांव में रैतु वेदिका भवन वायकुंठ धामम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने देववाड़ा गांव में रैतु वेदिका भवन व वायकुंठ धामम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील तक पहुँचा कर मुकामी अवाम को सहूलत पहुँचाई जा रही है। और इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में इस माह की 10 तारीख तक 50,000 करोड़ रुपए जमा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्करडी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। నిర్మాణం చేసి ఆ క్లస్టర్ కు ఒక ఏఈఓ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ను నియామకం చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గౌరవనీయులు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా మన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 1000 పైచిలకు అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్లను నియామకం చేసి ప్రతి క్లస్టర్ లో 5,000 ఎకరాలకు ఒక ఏఈఓ ఉండే విధంగా నిర్ణయం తీసుకొని రైతులకు ఈ విధంగా మరి ఎప్పటికప్పుడు సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ఆ అధికారిని కూడా నియమించడం జరిగింది। ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా ఈ రోజు ప్రకృతి వరం ఉంది, అన్ని విధాలుగా ప్రతి గ్రామానికి ఏ విధంగా చేయాలో అన్ని విధంగా ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రం మొత్తం ప్రజలకి ఇబ్బంది లేకుండా పెన్షన్లు తీసుకొని మరి గత పాలకులు ఉన్నప్పుడు పెన్షన్లు 200 రూపాయలు ఇచ్చేటోరు, కానీ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత 1000 రూపాయలు ఇచ్చి మళ్ళీ మొన్న ఎలక్షన్ లో 2018 ఎలక్షన్ తర్వాత 2000 చేయడం జరిగింది। మరి వికలాంగులకి 3000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు। మరి భారతదేశంలో రాష్ట్రం ఇస్తున్నదంటే ఏ రాష్ట్రం ఇస్తలేదు, కేవలం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారు। అదే విధంగా ఈ రోజు इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की तरक्की व टीआरएस की कारकर्दगी से मरकजी बीजेपी कायदीन खौफजदा बौखलाहट में दे रहे बयानात। मुत्तहिदा जिला एमएलसी के कविता अपने वतन अजीज हिंदुस्तान की खवातीन व बिछड़े तबके के अवाम को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाली अजीम खातून फातिमा शेख की 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर दी गई गूगल की जानिब से खिराज अक़ीदत। बिल्कुल पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ कोरोना, कई पुलिस मुलाजमीन कोरोना वबा का हुए शिकार। मुत्तहिदा जिले में जोश खरोश के साथ रैतु बंधु समरालू का मुख्तलिफ मुकामात व दही इलाकों में इनेकाद। रियासती वज़ीर आला केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। महाराष्ट्र में पीसी रात का कर्फ्यू, 15 फरवरी तक स्कूल बंद, मस्जिद कई पाबंदियां। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।